Good morning everyone, this is Abhishek and today in this video we are going to start a new, or I would say last chapter of political science class 6, that is urban livelihood. In previous chapter we have already studied about rural livelihood, in which we saw that how people of rural areas earn their livelihood and what kind of work they do for their livelihood. Okay, in that we saw that many of the people, like millions of people, are involved in agricultural work to earn money for their daily uses. Okay, now in this video we will see how urban people earn their livelihood. Okay, and what is the range of earning livelihood in the urban areas. Look, urban areas are uh, very diverse. If you say, like in urban areas you see the world India's richest person, and you can also see the India's poorest person in that city. Okay, like if you see the example of Mumbai, you will find Mukesh Ambani living there. Okay, and in the same city, the one who is pulling his rickshaw and earning hardly for one day food, okay, he is also living in that city. So you can see the diversity, the range of the people, the socio-economic status in cities. Okay, so let's start this video. Without any further ado, you can see here the picture, the rush and the different kind of things. You can see the circus, you can see the uh, cars roaming around, different kind of shops here, and buses. Here you can see the small vendors selling something. Okay, so lot of thing. We'll get to know how different people earn their livelihood in the urban city. Okay, so first of all, there is some pictures, and you have to tell about these pictures in this box. What do you see? What do you see in this illustration? What do you see in this illustration? So a lot of thing you can see in this illustration. A lady is selling something. uh, People are getting into the buses for their places where they work, and here you can see a man installing stall of chaat or something, street food. Okay, and people are buying there and eating something. uh, Here you can see small kids playing with their parents. Here you can see the ready-made shop. Means a lot of diversity you can see in terms of socio-economic strata. Okay, so ये हम चीज़ देख सकते हैं इस वीडियो में, सॉरी इस पिक्चर में. You have already read about the work that people do in rural areas. Now compare the work that people in the illustration are doing with the work that people do in rural areas. ओके, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो लोग काम करते हैं रूरल एरियाज़ में अपने लाइवलीहुड को कमाने के लिए, उसकी रेंज काफ़ी कम है. लोग या तो फार्मिंग वर्क करते हैं या फिर नॉन फार्मिंग वर्क में बहुत ही छोटे छोटे काम, जैसे कि शॉप खोल लेना, छोटा सा दुकान खोल लेना, या फिर साइकिल रिपेयरिंग का काम करना. एक्चुअली कोई काम छोटा नहीं होता है. आई मेक यू पार्डन फॉर दिस. कोई काम छोटा नहीं होता है, लेकिन ऑफ कोर्स मनी मैटर्स. मतलब ऐसे गांव में लोग काम करते हैं जो जिससे वो काफ़ी कम पैसे कमाते हैं. ठीक है, शहरों में आप जाके देखोगे तो वहाँ भी यही कंडीशन है, यही रेंज है. कुछ लोग जो है वो ऐसे काम करते हैं जिनसे उन्हें बहुत पैसा मिलता है, एफर्ट काफ़ी कम पुट करना पड़ता है. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर एफर्ट लगाते हैं, बट they hardly get earn for their food, for their one time food.
वो इतना मेहनत करने के बावजूद भी बहुत कम पैसा कमा पाते हैं, इवन कि उन्हें एक वक्त का रोटी भी मिलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, सो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। देयर आर स्टार्टिंग क्या है, देयर आर मोर देन 5,000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। भारत में 27,000 से ज़्यादा टाउन्स हैं और 27 बड़ी बड़ी शहरें हैं। टाउन्स का मतलब यही सिवान, गोपालगंज, छपरा, ओके। और बिग सिटीज़ का मतलब क्या हुआ, एक तो होती है मेट्रो सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन लगभग 20 लाख से ऊपर होती है, उसको मेट्रो सिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ओके, बेंगलुरु, ये क्या है, मेट्रो सिटीज़ हैं। इसके बाद इससे कम पॉपुलेशन वाले शहर आते हैं। तो इन सब को मिला के भारत में ऐसी कितनी सिटीज़ हैं, 27 बिग सिटीज़ है जहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं। ठीक है, इकलौती दिल्ली है में ही इतना छोटा है दिल्ली, लेकिन वहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, ओके। बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु हैव मोर देन अ मिलियन ऑफ पीपल। ओके, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई वगैरह में लाखों लोग एक साथ वहाँ पे रेसिडेंट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो शहरें होती हैं, जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, ये कभी सोती नहीं है। वाकई कभी नहीं सोती। यहाँ पे रात दिन आपको चहल पहल दिखती रहेगी। लोग काम करने वाले नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, दिन में जॉब करते हैं। ओके, ऐसा कहा जाता है। मुंबई के लिए ऐसा कहा जाता है, मुंबई में कभी एक तरीके से कहें रात नहीं होती, वहाँ पे लोग सोते नहीं हैं, मतलब वो सिटी सोती नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो है दिन में काम करते हैं। मैनी पीपल आर वर्किंग इन एट नाइट ऑल्सो। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो 24 घंटा चलती हैं। इंडस्ट्रीज 24 घंटा चलती हैं, तो इसका मतलब 24 घंटा क्या करना होगा, लेबर को वहाँ पे काम करना होगा। और जब सिटी नहीं सोएगी तो फिर सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सोएगा। तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, लेट्स विजिट वन एंड फाइंड आउट द वर्क पीपल डू इन द सिटीज़। आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन और दे सेल्फ एम्प्लॉयड। चलो देखते हैं कि शहरों में लोग किस तरीके के काम करते हैं। क्या वो किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी की कंपनी जो है उसमें काम करते हैं, या फिर खुद से एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब आपने कोई दुकान खोल लिया और आप वहाँ पे खुद से ही पैसा कमा रहे हो, या फिर आपने कोई फैक्ट्री खोल ली तो आप उसके मालिक हो। इसका मतलब यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, और अगर इफ़ यू आर एम्प्लॉई ऑफ समवन, अगर आप किसी के अंडर में काम करते हो तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे शहरों में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो एम्प्लॉई अंडर समवन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। ये लोग जो हैं कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से अपने लाइवलीहुड को चलाते हैं। एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी। और क्या इनके पास एक समान एम्प्लॉयमेंट और पैसा कमाने का मौका मिलता है शहरों में। ये हम इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में काफ़ी एक्शंस को देख सकते हो। कोई ऑटो चला रहा है, कोई बार्बिंग का काम कर रहा है, समवन इज़ कलेक्टिंग गार्बेज, मिल्क वाला है जो दूध बेच रहा है। ओके, ये आंटी हैं, ये बैठ के सब्जी वगैरह बेच रही हैं, पेपर वाला पेपर दे रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि लोग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल स्टे इन द सिटीज़ एंड टू अर्न मनी दे डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब। ओके, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है और कुछ लोग खुद से मीन्स किसी के अंडर काम करते हैं। तो ये जो जितने भी यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं जो कि लोडिंग करके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराती हैं। ये फल बेचने वाला है। ओके, तो ये शहर का एक तरीके से सिनेरियो है जहाँ पे लोग अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टॉपिक है वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट।
शहर में आप जब भी बड़े शहरों में जाओगे तो आप वहाँ की गलियाँ जो होंगी, जो रोड साइड एरिया होगा, वो देखोगे बिल्कुल हमेशा क्या रहता है, लोगों से भरा पड़ा रहता है। वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई सब्जी बेच रहा होता है, कोई अपना फूड का स्टॉल लगा के रखता है, ठीक है, किस लिए, जस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ओके, और ये लोग क्यों वहाँ पे ऐसा काम करते हैं, बिकॉज ये रूरल एरियाज से क्या होते हैं, माइग्रेट होके आते हैं। बिकॉज हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है कि रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो अनइवन होती है। अनइवन एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो कृषि वर्क में इन्वॉल्व होते हैं उनके पास तो 6 ही महीने काम होता है, और 6 महीने क्या होता है, उनको बैठना पड़ता है। तो उस समय वो क्या करते हैं, शहर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे अच्छी लाइफ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स। लेट्स स्टार्ट। This is the city where my cousin lives. I have been here only a few times. It is very big. Once when I came here, my cousin took me around. We left the house early in the morning. As we turned the corner onto Main Street, we saw that it was already buzzing with activities. It was already buzzing with activities even in the morning. The vegetable vendors were busy arranging tomatoes, carrots, cucumbers in the baskets, and her stall so that people could see what she had to sell. Next to her stall was a lovely colorful one that sold all kinds of flowers. Okay, तो ये जो एक लड़का है वो अपने भाई के यहाँ गया हुआ है, जिसका भाई एक बड़े शहर में रहता है। तो ये जब सुबह में बहुत अर्ली मॉर्निंग जब निकलते हैं, उसी समय देखते हैं कि जो गली है, जिस स्ट्रीट पे वो घूमने निकलते हैं, वहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ जारी है। जो एक लेडी वेंडर है वो अपनी सब्जियाँ अपने कैरेट्स में अपने बास्केट्स में अरेंज कर रही है, ताकि लोग देख सकें कि इसके पास क्या क्या है। मेनली क्या है, वो पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रही है। उसके बाद फ्लावर स्टॉल वाली एक दुकान लगा के वहाँ पे बैठी रहती है। तो ये लोग क्या करते हैं, वी बॉट अ रेड रोज़ एंड अ येलो रोज़ ऑन द पेवमेंट अपोजिट। वी सॉ अ पर्सन सेलिंग न्यूज़पेपर विथ अ स्मॉल crowd of people around him. Everyone wanted to read news. Buses whizzed past and there were auto rickshaw filled with school children nearby. अंडर इसके इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि शहरों का क्या कंडीशन होता है। आप मॉर्निंग में ही देखोगे शहर जग जाती है और सारे लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। जो सब्ज़ी बेचने वाला आता है वो सब्ज़ी बेचने चला जाता है, जो पेपर वाले होते हैं वो पेपर सेल करने के लिए घर घर घूमना शुरू कर देते हैं, मिल्क वाला मिल्क बेचने के लिए निकल जाता है, और जो ये रिक्शा पुलर होते हैं वो सवारी को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में लग जाते हैं। बस स्टार्ट हो जाता है लोगों को उनके डेस्टिनेशन पे पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो ये सब काम करते हैं लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी है बुच्चुन माझी का, जो कि एक रिक्शा पुलर है। ये गांव से माइग्रेट करके आया हुआ है। ये बिहार का रहने वाला है और ये माइग्रेट करके शहर आया हुआ है। क्यों? बिकॉज हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि गांव में जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो अनइवन होती है। गांव की एम्प्लॉयमेंट कैसी होती है? अनइवन होती है, इरेगुलर होती है। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट 6 महीने मिलती है मे बी, और 6 महीने नहीं मिलती है, बिकॉज जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं या फिर मैशन होते हैं उनके लिए रेगुलर काम नहीं होता है गांव में, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड वर्क होता है। गांव में बहुत कम लोग भी रहते हैं, इसी वजह से तो ये अपने फैमिली को चलाने के लिए क्या करता है, शहर की तरफ माइग्रेट करता है। माइग्रेशन इसी को बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ लेबर। जैसे बिहार और यूपी के लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने के वजह से लोग यहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में पहुँच जाते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो ये जो बुचुन माझी है, ये गांव में एक छोटा सा मैशन था, लेकिन इसके रेगुलर वहाँ पे काम नहीं मिलने की वजह से ये अपने फैमिली के लिए इनफ पैसा नहीं कमा पाता था, जिसके वजह से ये
शहर पहुंचता है और शहर पहुंचने के बाद से एक पुराना रिक्शा लेता है। पुराना रिक्शा लेने के बाद उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है, मतलब वो कर्ज लेके रिक्शा लेता है एक तरीके से लोन पर मनी लेंडर से, और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसा भरता है। पैसा जमा करना, इंस्टॉलमेंट में जमा करता है पैसा। ओके, और वो कैसे काम करता है, वो 8:30 बजे बस स्टॉप पे पहुंच जाता है अपना रिक्शा लेकर, और वहां से सवारी को कलेक्ट करता है और 5 से 6 किलोमीटर राइड करता है सवारी को। फिर भी उसे 10 से 30 रुपये एक ट्रिप के मिल जाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 6 से 7 किलोमीटर चलता है, और मान लो इस बीच कोई 1 किलोमीटर में उतर गया तो उसे 10 रुपये, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चला तो उससे 20 रुपये, और 6 किलोमीटर चला तो उसको 30 रुपये मिल जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8:30 से काम करके रात के 8:30 तक काम करता था, और 12 घंटे में ये 200 से 300 रुपये रोज़ कमा लेता था, ठीक है। जिसमें से ये 100 से 50 रुपये फूड और रेंट पे खर्च कर देता था, और बाकी का पैसा वो सेव करता था अपने फैमिली के लिए, ठीक है। ओके, अब ये बताता है कि मैं जो शहर में मेरी क्या है, मैं विलेज में अपने गांव साल में 2 से 3 बार जाता हूं अपने फैमिली से मिलने। दो माई फैमिली सर्वाइव्स ऑन मनी आई सेंड। मेरी फैमिली किस पे सर्वाइव करती है, जो मैं मनी यहाँ से बचा के भेजता हूँ उसी पे सर्वाइव करती है। माई वाइफ ऑल्सो अर्नस फ्रॉम एग्रीकल्चरल वर्क। और जो मेरी वाइफ जो गांव में रहती है वो एग्रीकल्चरल वर्क में एज अ लेबर काम करके कुछ पैसे वहाँ से कमा लेती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेबर जो है शहरों में इस तरीके के भी लेबर्स जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनकी जो कमाई होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा, इस समय बताओ, ये जो लोग हैं वो रोज़ 200 से 300 रुपये कमाते हैं, और इनका खर्च रोज़ का 100 से 150 रुपये का है। अगर आपने किसी तरीके से बंद कर दिया, शहर को बंद कर दिया, जैसे देखते हो ना, आज भारत बंद है, आज बिहार बंद है, ऐसा करके लोग आंदोलन चलाते हैं। जो राजनीतिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि टुडे इज़ बंद, क्लोज। उस दिन ये नहीं सोचते हैं कि जो डेली वर्कर हैं, जिनको रिक्शा खींचना है या फिर मैशन का काम करना है, वो अपना रोजी रोटी उस दिन कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से इनह्यूमन है, बंद जो है वो एक इनह्यूमन है, इनह्यूमन एक्ट है, गॉट इट। बंद नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि इसमें लाखों लोगों को सरवाइव करना पड़ता है। उस दिन पैसा नहीं कमा पाते वो, और बहुत हार्डली वो अपने लाइफ को उस दिन सरवाइव करते हैं, ठीक है। अब देखो, लाइक बुचुन माझी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट्स। यहाँ पे आप देख लो, ये जो लोग हैं बुचुन माझी, जो कि क्या है, एक रिक्शा पुलर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट्स पे डिफरेंट वर्क करते हैं अपने लाइवलीहुड को कमाने के लिए, ओके। कोई रिक्शा पुल, कोई ये जो कैरियर है उसको पुल करता है, इस पे बहुत सारा लोड कैरी करके वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। इसको हम गांव में क्या बोलते हैं, ठेला बोलते हैं, ठीक है। Often workers who makes living in the city are forced to set up their homes on the street as well. जो वर्कर्स हैं, चूँकि ये तो बहुत ही कम मनी कमाते हैं, बहुत ही कम पैसा कमाते हैं, तो मजबूरन इन्हें सड़क पे ही अपना घर बसाना पड़ता है। कच्चे मकान को कुछ न कुछ हल्के फुल्के मटेरियल का इस्तेमाल करके ये स्ट्रीट पे ही रहने को मजबूर होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रीट पे ही रहने को मजबूर होते हैं। ये कंडीशन है शहरों में आने वाले डेली लेबरर्स की। ये कंडीशन किसकी है, शहरों में आने वाले डेली लेबरर्स की। डेली वेज वर्कर क्या होते हैं, जो रोज़ मेहनत करते हैं और उस दिन का पैसा कमाते हैं, जो रोज़ मेहनत करते हैं और उस दिन का पैसा कमाते हैं, और अगले दिन अगर काम नहीं मिलेगा तो उनको खाने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लेडीज़ हैं ये एक मॉल में है, और बर्तन की दुकान में, फैंसी बर्तन की दुकान में ये काम करती हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि ये मिडिल क्लास की हैं, ये डेली वर्कर नहीं है, बल्कि ये क्या है,
मंथली वर्कर हैं, इनको हर महीने क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके के भी लोग काम करते हैं शहर में। एक तो डेली वेज वर्कर, कुछ लोग होते हैं जो मार्केट्स वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो इन द मार्केट, मार्केट में आप शहरों में जाओगे तो क्या देखोगे, मार्केट में आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुकान में काम करते हैं, दुकान में काम करके और अपना डेली लाइवलीहुड अर्न करते हैं। डेली लाइवलीहुड अर्न करने का मतलब यहाँ पे इनकी सैलरी फिक्स होती है, हर महीने के आखिरी दिन इनको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो इनको कहेंगे ये किसी के अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। और ये जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ये अपना एक दिन काम करते हैं, उसी दिन पैसा कमाते हैं, ठीक है। ओके, फैक्ट्री वर्कशॉप एरियाज़ में आप जाके देखोगे, फैक्ट्री वर्कशॉप एरियाज़ में तो यहाँ पे बहुत सारा काम होता है, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी का काम हो गया, क्लोथ प्रोडक्शन का काम हो गया, और भी जैसे प्लास्टिक की जो मशीन वो कैन्स वगैरह बनती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें जो काम करने वाले वर्कर होते हैं वो भी डेली वेज वर्कर नहीं है, दे आर मंथली अर्निंग वर्कर। उन्हें महीने में सैलरी मिलती है, उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक है। तो इनकी कंडीशन थोड़ी ठीक रहती है जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। ये स्टोरी है, आप इसको पढ़ना, लेकिन जो भी है हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि क्या होता है शहरों में, किस तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो होते हैं डेली वेज वर्कर होते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है ये हमने बताया आपको। और बाकी जो होता है कुछ साइट्स वगैरह पे काम करने वाले लोग होते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग होते हैं, इलेक्ट्रिशियन मार्केट वगैरह में काम करने वाले लोग होते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनती है वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। अब देखो इसी के साथ साथ शहरों में काम तो बहुत होता है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से शहर पे जब लोड पड़ जाती है तो लोग डेली एक चौक पे बैठते हैं, जो लेबर्स होते हैं वो एक चौक पे बैठते हैं और उन्हें आके कोई ना कोई क्या करता है, काम के लिए ले जाता है। तो देखो लेबर चौक पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। लेबर चौक पे क्या है, लोग बैठे हुए हैं और इस लोग आएंगे जिनको लेबर की ज़रूरत होगी, वो यहाँ से आके इन लोगों को लेके जाएंगे और काम करेंगे और फिर इनको पैसा मिलेगा, ठीक है। इन लोगों को हार्डली कितना पैसा मिलता है, तो एक दिन में इनको 200 से 300 रुपये हार्डली ये लोग कमा पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ओके, शहर में एक और वर्ग होता है, एक आप कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं शहरों में, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए किस में काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं। कॉल सेंटर क्या है, इसमें जो भी सर्विसेज आपको मिल रही होती हैं, जैसे कि मान लो आप एक तरीके से एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हो और आपको जो भी दिक्कत होगी तो फिर आप किसको बोलोगे, तो ये कॉल सेंटर में उसके लोग होते हैं और वो बैठे होते हैं, आप उनको कॉल करोगे फिर वो आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो ये कॉल सेंटर में लोग काम करके यहाँ पे अपना पैसा कमाते हैं। ये बहुत अच्छा एक जरिया है पैसा कमाने का। देखो अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ में, ख़ास करके अमेरिका में बहुत सारी टेक कंपनीज़ हैं, बहुत सारी क्या है, टेक कंपनीज़ हैं। लॉट ऑफ टेक कंपनीज़ आर देयर इन अमेरिका, और टेक कंपनीज़ के बदौलत अमेरिका बहुत सारा पैसा कमाता है। लेकिन वहाँ के जो लेबर कॉस्ट है, वहाँ पे 1 घंटा काम करने वाले जो लोग हैं 1 आवर काम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। इस वजह से अमेरिका जितना भी ये कॉल सेंटर वाला काम है, सर्विस का काम है, टेक बेस्ड काम है, वो किसको देता है, उस कंट्री में जहाँ पे लेबर सस्ते मिलते हैं। जैसे कि भारत में लेबर कॉस्ट बहुत कम है, तो यहाँ पे अमेरिका की बहुत सारी कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग काम करके इंडियन मनी में काफ़ी पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से लाइवलीहुड का जरिया है, किसका, भारतीय लोगों का। तो आप देख पा रहे हो कि कितना रेंज है
लोग एक तरीके से रिक्शा पुल भी करते हैं शहरों में, फिर रिक्शा पुल के बाद से दुकानों में भी काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में भी काम करते हैं, टेक बेस कंपनीज़ लाइक कॉल सेंटर में भी काम करके अपना मनी कमाते हैं। ठीक है, ओके। सो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते। यही है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसेस को यहाँ पे रन करते हैं शहरों में। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बिग बिजनेसेस को रन करते हैं और अपना मनी अर्न करते हैं, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग एक बार पढ़ोगे और पढ़ के उसके बाद से क्वेश्चन करोगे, और मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा, इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल ये ओवरव्यू था कैसे लोग मनी अर्न करते हैं, कहाँ पे, शहरों में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोग इसमें से कोई क्वेश्चन करें तो कर सकते हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन रीड करके आप कर सकते हो। ठीक है, और ये सेकंड क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो ये दोनों क्वेश्चन यू हैव टू डू, गॉट इट।